I gave you an introduction to what assets are, and just to recall what we did, assets are things of value owned by the firm. Okay, now they can be tangible in nature and intangible in nature. In accounting scenario, what we do is we classify the assets into two categories. One are the fixed assets and the other are the current assets. Now, how do we differentiate between fixed and current assets? It is on basis of time, which means fixed assets are your long-term assets, while current assets are short-term. Now, in accounts, short-term stands for a period which is less than 1 year, and long-term hence is a period which is more than 1 year. Fixed assets are held for long use in business and they help in production of goods and services or and are not held for resale purpose in the normal course of business. So as you see, land, building, machinery, furniture, fixtures, these assets are purchased for use over a long period of time and hence they are known as fixed assets for the business. On the other hand, there are some short-term assets which are generally consumed or converted into cash within 1 year. Okay, within a period of 1 year. What all comes under current assets? Cash. By cash, we mean cash in hand. Okay. The other type of cash which you can have is cash at bank, which is your bank balance. Then debtors, bills receivable, investment. Okay. Now, any money which is kept aside, which is put in some opportunity by the business to get some return on it, is investment. Now, debtors and bills receivable, I'll take up in detail in the coming slides. But investment as a term means that you forego money today to get some return in the future. Okay, so which means money kept in bank in your fixed deposit will give you a return in the future. Money invested in mutual funds, in shares, in debentures, in gold, in real estate. All this is done with the purpose of increasing the amount invested. Cash in hand is not investment because you keep the money in your bank locker, it is not going to grow. But if that money is kept in a fixed deposit, then it will earn some interest and the amount will grow. Okay, so all those assets which have a short term maturity, that is, they mature in 1 year or they can be converted into cash within 1 year, are known as current assets. So this distinction is very important because when we make entries, when we put the assets in the balance sheet, then we first mention the fixed assets and then the current assets come. Okay. The next most widely used accounting term is liability. Liability is an obligation, amount to pay for the business to an outsider. Okay, so like I gave you the example that your business is purchasing some raw materials on credit basis. I'll just take up the question just a second. On credit basis, then your credit purchase made, उधार पर जो आपने purchase करी है, that becomes a liability for the business. Okay, so Sahil has a question. Gold कौन सा asset है? Look, gold will not be an asset for the business. Okay, generally gold is an asset for an individual, for a bank. Okay, so
It is a long-term asset, fixed asset. Again, when you classify the assets, that also varies from individual to individual. If I am trading in gold, these derivatives और ETF समथिंग लाइक दैट, अगर शेयर मार्केट में आप गोल्ड की ट्रेडिंग कर रहे हो तो वो शॉर्ट टर्म हो जाएगा. पर अगर इंडिविजुअल इन्वेस्टमेंट के लिए गोल्ड परचेज करके रख रहा है तो वो एक फिक्स्ड एसेट हो जाता है क्योंकि आप वो लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए रखते हो. Okay, so raw gold, yes, will be an investment and that will be a long term investment. So it becomes a fixed asset for an individual. Okay, but just for your general awareness, gold based bonds होते हैं जिनको हम sovereign bonds बोलते हैं, और भी तरह के फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जिनमें जो अंडरलाइंग एसेट होता है वो गोल्ड होता है, तो वो जनरली शॉर्ट टर्म के लिए ट्रेडिंग होती है गोल्ड की. ओके, आई होप साहिल दिस इज क्लियर. Banks keep stock of gold, RBI keeps the reserve of gold. So those interpretations are then different from what we are doing right now. Okay, so liability is the money. Look, whenever we this all these concepts I'll be doing, but अभी आप ये चीज समझो कि जो भी accounts बनते हैं वो business के perspective से बनते हैं, from the business point of view. So we are not talking about the owner here. We are talking about the asset of the business, liability of the business. So business is treated as a separate entity. Business has an identity which is different from the owner. तो रिलायंस इंडस्ट्रीज में मेजॉरिटी शेयर होल्डिंग मुकेश अंबानी की है, बट रिलायंस इंडस्ट्री इज अ सेपरेट एंटिटी फ्रॉम मुकेश अंबानी. अकाउंट्स जो प्रिपेयर हो रहे हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज के, वो रिलायंस इंडस्ट्रीज के नाम से प्रिपेयर हो रहे हैं. मुकेश अंबानी इज नॉट सेम एज रिलायंस इंडस्ट्रीज. ही इज जस्ट contributor of capital. Okay, so he's a majority shareholder in Reliance Industries. But Reliance Industries की एग्जिस्टेंस मुकेश अंबानी से डिफरेंट है. तो जो अकाउंट्स बन रहे हैं वो कंपनी के बन रहे हैं, वो आपके बिजनेस के बन रहे हैं. जब मैं लाइबिलिटीज या एसेट्स की बात कर रही हूँ, मैं इंडिविजुअल के एसेट्स या लाइबिलिटी की बात नहीं कर रही, मैं बिजनेस के लाइबिलिटी और एसेट्स की बात कर रही हूँ. तो जब बिजनेस परचेज कर रहा है रॉ मटेरियल क्रेडिट पे, तो बिजनेस की लाइबिलिटी इंक्रीज हो रही है. बिजनेस ने उधार लिया है, वो पैसा वापस करना है. वो किसको वापस करना है? जिससे आपने वो रॉ मटेरियल लिया है, दैट पार्टी इज नोन एज क्रेडिटर. ओके, नेक्स्ट टर्म यूज्ड इज बैंक ओवरड्राफ्ट. ओवरड्राफ्ट का क्या मतलब होता है? When you withdraw more than your balance in the account, in the bank account. When bank gives you a facility of withdrawing more money than what you have in your account, that facility is known as bank overdraft. जनरली जो बिजनेसमैन होते हैं जो मल्टीपल डीलिंग्स करते हैं सेम डे में, उनका करंट अकाउंट होता है बैंक के पास, और बैंक ये फैसिलिटी करंट अकाउंट पे है. ओके, नेक्स्ट टर्म इज बिल्स पेबल. आई टेक दैट टर्म, इसके बाद वाली स्लाइड्स में ही आएगी. एंड लोन, लोन टेकन बाय द बिजनेस is a liability for the business because that amount needs to be paid back. Okay, like assets, liabilities are also divided into two categories on basis of time. One, you have the long term liabilities and second you have the short term liabilities. तो जहां पे फिक्स्ड एसेट्स थे उनको लाइबिलिटी टर्म्स में हम लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी बोलते हैं. फिक्स्ड लाइबिलिटी एज अ टर्म इज नॉट यूज्ड. ओके,
और जहां पे करंट एसेट्स थे वहां पे वी हैव शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज. अगेन लॉन्ग टर्म विल बी फॉर अ पीरियड मोर देन 1 year, while short term will be for a period less than 1 year. Okay, so any long term loan taken by the bank, 5 years ka, 10 years ka, taken from a bank by the business will be a long term liability. Okay, now there is another term used, debentures. दो टाइप के सोर्सेज होते हैं बिजनेस के लिए टू रेज मनी. One is equity and the other is debt. Now equity issue करना, equity shares issue करना, shares जब आप issue करते हो तो आप बिजनेस की पार्ट ओनरशिप शेयर होल्डर को दे देते हो. ठीक है, तो जब शेयर्स इशू करती है कंपनी तब वो नए लोगों को ऐड कर लेती है एज ओनर्स. Owners in the sense they can participate in the decision making process of the company. Okay, so abhi I'll talk about simple equity shares. Equity shares, इक्विटी में इक्विटी शेयर्स आता है और एक शेयर्स होते हैं आपके प्रेफरेंस शेयर्स. प्रेफरेंस शेयर्स जब हम बात करते हैं कि क्या रिटर्न मिलता है आपको इक्विटी होल्डिंग पे, I told you yesterday also, the return that you get on your share investment is known as dividend. Okay. Now, preference literal term जो meaning बता रहा है आपको, जिसको कुछ preference मिले over someone else. Okay. So, preference shares, preference shareholders get preference over equity shareholders. That is why the term preference is used. और प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को डिविडेंड जो मिलना है वो हर ईयर फिक्स होता है. जब कंपनी प्रेफरेंस शेयर्स इशू करती है तभी स्पेसिफाई कर देती है दैट दीज शेयर्स आर 10% प्रेफरेंस शेयर्स say of rupees 100 each. So what does this mean now? कि हर ईयर जो डिविडेंड मिलना है वो 10% होगा और 10% किस अमाउंट का होगा? फेस वैल्यू का. तो इस वैल्यू पे शेयर इशू होगा. 10% ऑफ 100, 10 रुपीज. चाहे बिजनेस को प्रॉफिट हो, बहुत ज्यादा सुपर नॉर्मल प्रॉफिट हो या लॉस हो, दिस इज व्हाट नीड्स टू बी पेड टू द प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स. सो फॉर देम द डिविडेंड इज फिक्स्ड. On the other hand, for equity shareholders, the dividend is not fixed. Equity shareholders को by per se definition हम बोलते हैं they are the real owners of the business. So for them, dividend is not fixed. If the company feels that okay, we have surplus cash, इस year में बहुत अच्छी earnings हुई हैं, वो equity shareholders को dividend distribute कर देंगे. अगर कंपनी को लगता है कि नहीं इस ईयर में कम अर्निंग्स हुई हैं या अभी हमारे पास और इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज हैं तो अभी हमें अपने पास रखना चाहिए कैश, तो माइट भी वो इक्विटी शेयर होल्डर्स को कुछ भी डिविडेंड ना दे. तो इक्विटी शेयर होल्डर्स को 10 से ज्यादा भी डिविडेंड मिल सकता है, 10 के इक्वल भी मिल सकता है और 10 से कम भी मिल सकता है. So this fluctuation in dividend is faced by the equity shareholders. But then why do people purchase equity shares? One, they get a right to vote in the annual general meetings of the company. तो उनके पास डिसीजन इन्फ्लुएंस करने का पावर है क्योंकि उनको वोटिंग राइट्स मिलती हैं. और दूसरा इस एंटिसिपेशन से कि जब बिजनेस प्रॉफिट करेगा तो उनका डिविडेंड प्रेफरेंस वालों से ज्यादा होगा.
they will invest in equity shares. So among the two shares, again, Pawan, it all depends on individual to individual. Okay, say at your age, you can take the risk, you will prefer equity shares. But say someone who is close to retirement would want a stable source of income, then that person would prefer a preference share. Okay, because वहां पे डिविडेंड पहले ही पता है कि हर ईयर कितना डिविडेंड मिलना है. तो इक्विटी शेयर होल्डर्स रिस्क लेते हैं, बट अगेन रिस्क क्यों ले रहे हैं? क्योंकि उनको अबव एवरेज रिटर्न एक्सपेक्टेड है. So in finance, we use a statement, higher the risk, higher is the expected return. So the more risk you take, calculated risk, you can expect an above average return. Okay. Okay. So after that, Ma'am, can you please explain this part again? okay, I'll just explain this part again. Let me take a blank page. Wait. Okay. So I am saying that the share capital of the company is divided into two types of shares. One is equity shares and the other is preference shares. ठीक है. अब जो इक्विटी होती है कंपनी की, दोनों शेयर्स पे आपको जो भी रिटर्न मिलता है उसको हम बोलते हैं डिविडेंड. One thing you should know is that shares give you return in the form of dividend, while debentures give you interest. Okay. Now moving ahead, प्रेफरेंस की पहले बात करते हैं. जो प्रेफरेंस शेयर्स, देखो जब कंपनी इशू करती है शेयर्स तो एक्सप्लिसिटली उसमें मेंशन्ड होता है वेदर दीज आर इक्विटी शेयर्स और वेदर दे आर प्रेफरेंस शेयर्स. द मोर पॉपुलर अमंग दी टू आर द इक्विटी शेयर्स. तो जो आप शेयर मार्केट में सुनते हो शेयर्स ऊपर हुए नीचे हुए, वो जनरली जो बात होती है वो इक्विटी शेयर्स की होती है. ठीक है. अच्छा, there are questions in the chat box. Cost of both shares are not the same. पावन, कॉस्ट की बात करें बहुत डिटेल फाइनेंस हो जाएगी, बट आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए इक्विटी कॉस्टलियर सोर्स ऑफ फाइनेंस होता है, क्योंकि इक्विटी इशू करने में बहुत ज्यादा फॉर्मेलिटीज इन्वॉल्व होती हैं, बहुत ज्यादा परमिशन चाहिए होती हैं, सेबी की परमिशन चाहिए होती है और उसमें पेपर वर्क बहुत होता है. सो उसमें कॉस्ट इन्वॉल्व ज्यादा होती है, लीगल ऑब्लिगेशन ज्यादा होती है. मंथली रिटर्न पॉलिसी शेयर्स में नहीं होती है. ओके. शेयर डिविडेंड जो होता है डिस्ट्रीब्यूट, वो ईयर एंड पे होता है. ओके. And that again is dependent on what profits are made by the firm. Preference shareholders know beforehand that what money, what income will they get from the company. But equity shareholders, they face the risk of varying dividend every year. Okay, the rate of return for dividend again, actually account से थोड़ा ये divert हो रहा है topic. This is all coming under finance. Just to give you an overview, dividend is dependent on earnings of the company and the investment opportunities before the company. So if the company feels that in the future it has more investment opportunities, it will retain more dividends. कम dividend distribute करेंगे, ज्यादा dividend retain करेंगे, ताकि उसको further invest करके ज्यादा profit दे पाए equity shareholders को. Okay. Now, the preference shareholders have a right to dividend every year. If the company is facing losses, depending on the nature of preference shares, उसमें cumulative preference shares होते हैं, जिनमें जो dividend होता है वो add up हो जाता है. अगर इस ईयर में लॉस हुआ, 10 रुपए का डिविडेंड नहीं मिला, तो अगले ईयर में जब प्रॉफिट होगा तो 10 + 10 20 रुपए का डिविडेंड मिल जाएगा प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को. तो दे हैव अ राइट टू रिसीव डिविडेंड. एक्चुअल में इक्विटी शेयर होल्डर्स का नंबर लास्ट में आता है टू गेट अ शेयर इन प्रॉफिट्स. सबसे पहले डिबेंचर होल्डर्स का नंबर आता है, फिर प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का और फिर
इक्विटी शेयर होल्डर्स का। अब सिंपल सिंपल जो अभी आपको नॉलेज में होनी चाहिए चीज, वो इक्विटी और प्रेफरेंस में ये डिफरेंस है दैट preference shareholders know in advance how much dividend will they receive and they get preference over equity shareholders. Preference in the sense when profits are made by the firm, preference shareholders will get dividend first, then the equity shareholders, and even when the business is being closed down, तो जब पैसा वापस करने की बारी आती है तो पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को अपना पैसा मिलेगा और उसके बाद इक्विटी शेयर होल्डर्स को मिलेगा. So they always get a preference over equity shareholders. Okay. Now, when preference shares are distributed, are issued by the firm, so it is mentioned 10% preference shares of rupees 100 each. तो जब प्रेफरेंस शेयर्स इशू हुए तो फर्म ने 100 रुपए के प्रेफरेंस शेयर्स इशू करे और 10% उसके आगे मेंशन है. इसका मतलब क्या है? 10% ऑफ फेस वैल्यू, जिस वैल्यू पे शेयर्स इशू हुए, this is the fixed amount of dividend that will be paid every year to the preference shareholders. So they know beforehand whether firm is earning normal profits और सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स, उनका डिविडेंड सेम रहेगा चाहे लॉसेस हो रहे हैं, उनको 10 का 10 रुपया ही मिलेगा. इक्विटी शेयर होल्डर्स का जैसे मैंने आपको बताया कि जब कंपनी की एनुअल जनरल मीटिंग होती है, एजीएम, एनुअल वर्ड आ गया तो ईयर में एक बार ही होती है एनुअल जनरल मीटिंग टुवर्ड्स द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर. उसमें जब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बैठते हैं, इक्विटी शेयर होल्डर्स के सामने डिसीजंस रखे जाते हैं, तो उसमें इक्विटी शेयर होल्डर्स कैन वोट. Okay. Now every equity shareholder will get an invite to AGM. But generally क्या होता है practical life में, जिनके पास ज्यादा proportion of shares होते हैं, ज्यादा percentage of share holding होती है, वही लोग participate करते हैं AGM में. Okay. Head office में होती है, उसका पहले ही beforehand notify करा जाता है to the shareholder. Yes, Vandan, you have a question. मैम ये वाला टॉपिक थोड़ा सा समझ नहीं आ रहा. बेटा एक्चुअली क्या हो रहा है कि थोड़ा ना ये बहुत ही ब्रॉड टॉपिक है, तो अगर मैं बात करूं इन दोनों कॉन्सेप्ट्स की डिटेल में तो ये फाइनेंस की तरफ चला जाता है. अभी के लिए अकाउंट्स में आप ये समझ लो कि जो भी प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स होते हैं उनको जो रिटर्न मिलना है, उनको जो डिविडेंड मिलना है, वो फिक्स्ड है. इक्विटी शेयर होल्डर्स को जो डिविडेंड मिलता है वो फ्लक्चुएटिंग होता है. ठीक है, कंफ्यूज मत हो. यस मैम. क्वेश्चंस आ जाते हैं तो आई हैव टू आंसर देम, बट दे गेट फ्लक्चुएटिंग डिविडेंड and here for preference shareholders they are getting fixed dividend. Okay, so Yes, let's yes, limit this discussion till here. अगर किसी स्टूडेंट को इसको डिटेल में समझना होगा, we'll take this up in the tutorials which we have. Okay, so let's make it easy for everyone. Okay. Okay, now this is about equity shares and preference shares. In accounting, this is the maximum you need to know, that preference shareholders will get fixed dividend, equity shareholders get fluctuating dividend depending on the financial performance of the company. When you study finance in the third semester, then I'll take up all the formalities, all the implications of both these issues in detail. Okay. After that, the next source of finance, money का next source बनता है issue of debenture. Okay. So debenture itself is derived from the term debt. और debt का मतलब क्या होता है? उधार होता है. Okay.
तो जब कंपनी को ये होता है कि हम शेयर्स इशू नहीं करते, बहुत ज्यादा फॉर्मेलिटी है, और उसमें जैसे अगर इक्विटी शेयर्स इशू करे, इंटरफेरेंस भी होती है वर्किंग में, तो हम डिबेंचर इशू करते हैं, डेट इशू करते हैं। अगेन इस पे जो रिटर्न मिलता है वो फिक्स्ड होता है। अगर आपने किसी कंपनी के डिबेंचर्स परचेज करे हैं तो उस पे जो रिटर्न मिलता है वो फिक्स्ड होता है, और उसको हम क्या बोलते हैं, इंटरेस्ट बोलते हैं। उधार है, उधार पे इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा कंपनी को, और ये उधार कंपनी किससे ले रही है, डिबेंचर पब्लिक में इशू होते हैं। तो आपको जब कंपनी ने डिबेंचर इशू करा तो उसको बोलते हैं IOU। ओ का मतलब क्या है, आई हैव टू रिटर्न सम मनी टू यू। ओके, सो कंपनी इज एक्नॉलेजिंग कि कंपनी ने आपसे उधार लिया है पैसा, और कंपनी को ये पैसा वापस करना है। जैसे लोन में होता है, जितने टाइम के लिए लोन लेते हो उस पे इंटरेस्ट पे करते हो, उसी तरह जब तक कंपनी ने, जब तक बिजनेस ने डिबेंचर इशू करा है, जो डिबेंचर होल्डर है उसको बिजनेस इंटरेस्ट पे करेगा। जब टाइम पीरियड खत्म हो जाएगा तो सारी अमाउंट, प्रिंसिपल अमाउंट वापस करें। ओके, सो डिबेंचर उधार है, इसीलिए कहाँ पे आएगा, लाइबिलिटी में आएगा। ओके, इवन योर शेयर्स आर ऑल्सो लाइबिलिटी, इन द सेंस कि कभी ना कभी ये पैसा बिजनेस को वापस करना पड़ेगा। ओके, जितना ज्यादा ये टर्म हम प्रैक्टिकली रिपीट करेंगे उतना ज्यादा ये रीइंफोर्स हो जाएगा। डिविडेंड इज रिसीव्ड ऑन शेयर्स, डिबेंचर इस पे आप जो रिसीव करते हो वो इंटरेस्ट होता है। डिबेंचर डेट होता है, शेयर्स ओनरशिप का पार्ट होते हैं, बट इन अकाउंट्स बोथ कम अंडर द हेडिंग ऑफ लायबिलिटी। ओके, तो वंस वी स्टार्ट विद द प्रैक्टिकल क्वेश्चन, वहां पर जैसे जैसे ये टर्म्स आएंगे मैं दोबारा भी रिपीट कर दूंगी। ओके, लेट्स कम बैक to liabilities. So, as I explained you, there are some short-term liabilities. I'm rubbing this, making it more messy. Okay, and there are some long-term liabilities. तो शेयर कैपिटल डिबेंचर्स ये लॉन्ग टर्म के लिए इशू होते हैं, ये लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी है। अगर आपने कोई शॉर्ट टर्म लोन लिया है तो वो आपका शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी हो जाएगा। उसके अलावा जो क्रेडिटर्स हैं जिनसे आप उधार पे पैसा लाए हो वो आपकी शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी हो गई। कैश क्रेडिट और ओवरड्राफ्ट दोनों फैसिलिटी बैंक देता है अपने कस्टमर्स को, जिसमें वो अपने अकाउंट बैलेंस से ज्यादा पैसा विड्रॉ कर सकते हैं। तो शॉर्ट टर्म लोन होता है बाय बैंक। These are all coming under the short-term liabilities, which are also known as the current liabilities for the business. Okay. So first, any question till here from assets and liabilities. Assets are things of value owned, जो आगे income earn करने में help करते हैं business की। Liabilities होती है business का उधार। Okay, I hope this is clear. So we'll then move further. If there's still a doubt, still a question, please ask. बिजनेस का नेटवर्थ, इंडिविजुअल का नेटवर्थ, दोनों को कंसिडर करके आता है। ओके, प्रोविजन टू बैड डेट्स, एक्चुअली अगेन आप लोग थोड़ा हाई लेवल चले जाते हो। प्रोविजन टू बैड डेट्स आपका एसेट साइड पे आता है, डेटर से माइनस होता है। तो आप, वन ऑफ यू आल्सो आस्क्ड कि रिजर्व्स क्या होते हैं, रिजर्व्स आते हैं लायबिलिटी साइड पे, प्रोविजंस आपके एसेट से एडजस्ट होते हैं।
beta this is first unit. These terms won't come in your exam, but to form a basis of accounting, this will be done. Otherwise, I have shared the contents of Unit 1 on the Google Classroom already. Okay, let's move to the next term, which is known as drawings. Drawings, to draw something, to withdraw something. So, when some money or goods are withdrawn from the business for personal use, not for official use, but for personal use by the owners, then that is known as drawings. ओके, सो दो ओनर्स हैं बिजनेस में, एक को लगता है कि मुझे अर्जेंट 1 लाख रुपीज की रिक्वायरमेंट है, तो वो बिजनेस से अगर पर्सनल यूज के लिए 1 लाख रुपी विड्रॉ करे तो उसको ड्रॉइंग्स बोलते हैं। बिजनेस में आपने 2 एसीज लगाए हुए हैं अपने ऑफिस में, एक एसी वो अपने घर के यूसेज के लिए वहां से विड्रॉ कर ले तो उसको भी ड्रॉइंग्स बोलते हैं। ओके, सो वॉट एवर goods or cash are taken for personal use, those are known as drawings. Okay, मुकुल बेटा ये क्वेश्चंस आप अपने पर्सनल ग्रुप पे पूछ लिया करो, ठीक है? अभी ये I am not in a mood to answer such questions. Okay. So then drawings apart from that, what I was saying is कि आपने जो ओनर है उसने विड्रॉ करा है बिजनेस से, तो ओनर ने उधार लिया है बिजनेस से, तो ओनर को उस पे कुछ पैसा देना पड़ेगा बिजनेस को, उसको इंटरेस्ट बोलते हैं। ठीक है, अगर उधार पे आप मार्केट से भी पैसा उठाते हो तो उसको भी इंटरेस्ट पे उठाते हो, तो चाहे अपने बिजनेस से भी पैसा उठा रहे हो उस पर भी इंटरेस्ट ओनर को भी पे करना पड़ता है। ओके, तो ड्रॉइंग्स आर विड्रॉल्स मेड फॉर पर्सनल यूज। ओके, next term which we'll use is revenue. Revenue is nothing but your units sold into सेलिंग प्राइस पर यूनिट। इसका मतलब से आपका बुक्स का काम है, बुक्स मैन्युफैक्चर और सेल कर रहे हो, आपने 1000 बुक्स सेल करी और हर बुक की कॉस्ट 100 रुपीज है, तो आपकी टोटल अर्निंग कितनी हो गई? 1 लाख रुपीज। इस अर्निंग को हम क्या बोलते हैं? इस अर्निंग को हम रेवेन्यू बोलते हैं, जो रिटर्न मिला है फ्रॉम सेल्स। यूनिट सोल्ड इनटू सेलिंग प्राइस। रेवेन्यू में ना सिर्फ सेल्स रेवेन्यू आता है, बट इफ द बिजनेस इज अर्निंग एनी कमीशन, इंटरेस्ट, डिविडेंड, royalty, that what if you are using the say copyright or patents of some other business, उसके लिए अगर या सॉरी और बिजनेस आपका कोई पेटेंट यूज कर रहा है या कॉपीराइट यूज कर रहा है, उस पे आपको पेमेंट रिसीव होगी, दैट विल कम अंडर रॉयल्टी। रेंट रिसीव्ड, आपके बिजनेस के पास कोई सरप्लस बिल्डिंग थी, एक्स्ट्रा बिल्डिंग थी, वो आपने किराए पे चढ़ा दी, उस पे जो रेंट रिसीव होगा वो भी रेवेन्यू का पार्ट होगा। Okay, not profit minus loss, but revenue minus expenses will give you profit or loss. Okay, positive है excess of revenue over expenses will be profit, else loss. ओके, सेल ऑफ कैपिटल गुड्स। बच्चे आप लोग ना कॉन्सेप्ट्स थोड़ा हाई लेवल ले जाते हो, तो उसमें प्रॉब्लम होती है, बिकॉज अभी क्लास में बिल्कुल आई एम टॉकिंग एट बेसिक लेवल, एंड फॉर दैट आई एम स्टिकिंग टू द बेसिक टर्म्स। वंश कैपिटल गुड्स की सेल इसमें नहीं आती, क्योंकि वो कैपिटल जो रिसीट्स होती हैं उसमें आएगा। अभी जो मैं बात कर रही हूँ वो डे टू डे बिजनेस की बात कर रही हूँ,
ठीक है, तो अभी मैं रेवेन्यू रिसीट्स की बात कर रही हूँ. J curve is not part of your syllabus. I am not taking it up here. ओके, इकोनॉमिक्स में करना, और वो भी आगे जब स्टडी करोगे हाई लेवल पे तब उधर आएगा J curve. ओके, so Mukul, are you testing my knowledge by asking these questions? We come to next term, which is trade receivables. J curve is not related to what we are doing, na? So please avoid such questions. Trade receivables, okay? रिसीवेबल, बिजनेस के लिए रिसीवेबल का मतलब क्या हुआ? जो अमाउंट वो ड्यू है, जो मिलना चाहिए बिजनेस को फ्रॉम दी सेल ऑफ गुड्स और सर्विसेज. इसमें डेटर्स आते हैं और इसमें बिल्स रिसीवेबल आते हैं. अमाउंट ड्यू है पर अभी बिजनेस के पास नहीं आया, तो दिस इज समथिंग विच इज रिसीवेबल, which will be received in the future. Okay, so under that two things come. It is the sum total of debtors and bills receivable. First is the debtors. Debtors वो customers हैं जो हमसे goods ले गए but उन्होंने अभी payment नहीं करी. ओके, दे आर पर्सन्स और एंटिटीज. ना सिर्फ इंडिविजुअल हो सकता है बट आपके बिजनेस से कोई और बिजनेस भी गुड्स लेके गया है जिसकी पेमेंट अभी ड्यू है. दोज आर नोन एज डेटर्स. ओके, दे आर ऑल्सो रेफर्ड टू एज अकाउंट्स रिसीवेबल और ट्रेड डेटर्स. ओके, अब ये वो पैसा है जो बिजनेस रिसीव करेगा. Business is hopeful of receiving this money in the future. So, is this a liability for the business or asset for the business? Just think and Liability, sir. why liability, बेटा? विकास, आपको क्यों लगता है Because कि बिजनेस के लिए, बिजनेस ने गुड्स सेल करे, बिजनेस ने मैम गुड्स सेल करे और वो पैसा अभी आएगा बिजनेस के पास, तो मैम वो आएगा, बट पर्टिकुलर एट द टाइम जिस टाइम हमने सेल किया वी कुड हैव यूज दैट मनी फॉर द फर्दर बिजनेस, जो कि अब हम यूज नहीं कर पाएंगे. हाँ हाँ हाँ, वो तो बेटा वो फिर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट और वो सब मत अभी आप देखो. बिजनेस के पर्सपेक्टिव से आई जस्ट कम टू द अदर स्टूडेंट्स वन बाय वन. शशांक, जस्ट वेट फॉर अ मिनट. बिजनेस के पर्सपेक्टिव से बिजनेस को किसी को उधार नहीं देना तो लाइबिलिटी नहीं है. जब आप ओ करते हो किसी और को मनी, दैट इज अ लाइबिलिटी. But when someone is owing money to you, that is something which you will receive in the future. That will be your income. So that becomes an asset for the business. Okay, Okay, ma'am, these are all you things are getting new the for me. Yes difference? ma'am, yes ma'am. Yes, okay. Okay, so Simran and Mansi, yes, you have answered it correctly. It's an asset. Shashank, you were saying something. Now I was saying the same thing. They are debtors. Okay, yes. So I hope this difference is clear because this money will be received by the business, that becomes an asset for the business. Okay, and these are shown in the balance sheet. Many a times sundry debtors भी term use होता है. Okay, so debtors are those who owe money to the business. फिर नेक्स्ट टर्म यूज करी है बिल्स रिसीवेबल. अब बहुत बारी होता है जो लोग हमें पैसा जिन्होंने उधार देना होता है उनको टाइम चाहिए होता है पेमेंट के लिए, से 1 month 2 month. बाय दैट टाइम दे विल गिव इन राइटिंग दैट आई ओ 10,000 टू ए लिमिटेड. से हमारे बिजनेस का नाम है ए लिमिटेड, तो अ डेटर गिव्स इन राइटिंग that I owe 10,000 rupees to A Limited, which I will pay in 1 month time. That is by 26th December 2020. अब ये पेपर जो है, ये पीस ऑफ पेपर जो है, ये बिजनेस के पास रहेगा और ये प्रूफ है कि डेटर ने पैसा देना है बिजनेस को. इसको बोलते हैं बिल ऑफ एक्सचेंज.
ओके, जब इसमें लीगली स्टैंप लग जाता है, सिग्नेचर्स हो जाते हैं, ये बिल ऑफ एक्सचेंज बन जाता है। बिजनेस के लिए, ए लिमिटेड के लिए पैसा आना है तो ये बिल रिसीवेबल है, और जिसने इस पे साइन करा है, से राम है हमारा डेटर, तो राम के लिए ये बिल पेबल हो गया, उसने पेमेंट करनी है। राम ने उधार पे गुड्स लिए हैं ए लिमिटेड से। I'll just write it down. A Limited is our business. Sold goods on credit to Ram. Okay. Now राम को कैश पे करना है ए लिमिटेड को. ए लिमिटेड बिकम्स क्रेडिटर एंड राम बिकम्स डेटर. ओके, आई होप डेटर और क्रेडिटर एज अ टर्म क्लियर है. क्रेडिटर को पैसा मिलना है, डेटर ने पैसा पे करना है. ओके, अब डेटर क्या करता है, एक बिल पे, बिल ऑफ एक्सचेंज हम बोलते हैं इसको, एक पीस ऑफ पेपर पे लिख के दे देता है दैट आई हैव टू पे 10,000, आई ओ रुपीज 10,000 टू ए लिमिटेड. ओके, और नीचे राम ने अपने सिग्नेचर कर दिया. ये पीस ऑफ पेपर बन गया बिल ऑफ एक्सचेंज. ओके, अभी मैं बहुत सिंपल टर्म्स में बात कर रही हूँ, इसमें थोड़ी सी वो लीगल वो होती हैं फॉर्मेलिटीज, बट लेट्स नॉट गेट इनटू दैट. जस्ट अंडरस्टैंड दैट राम राइट्स आई ओ 10,000 टू ए लिमिटेड विच, और उसमें वो डेट लिख देगा कि ड्यू डेट ऑफ पेमेंट इज 26 दिसंबर 2020. अब राम के लिए, क्योंकि उसने पेमेंट करनी है, ये बन जाता है बिल पेएबल. पेएबल क्योंकि अमाउंट हैज टू बी पेड. while for A Limited, that is our firm, this amount will be received, so it becomes bill receivable. ओके, सो जैसे डेटर एसेट होता है, उसी तरह बिल रिसीवेबल भी बिजनेस के लिए क्या हो जाता है, एसेट हो जाता है, क्योंकि ये प्रूफ है कि आगे बिजनेस को कुछ कैश मिलेगा. ओके, सो ट्रेड रिसीवेबल, अमाउंट रिसीवेबल, अकाउंट रिसीवेबल, उसमें बिल्स भी आते हैं और डेटर्स भी आते हैं. ओके, जिसने उधार लिया है उसको पेमेंट करनी है, वो बिल्स पेबल होगा उसके लिए. पर जिसको उधार ड्यू है, जिसको पेमेंट रिसीव होनी है, वो पीस ऑफ पेपर उसके लिए क्या हो जाएगा, बिल्स रिसीवेबल हो जाएगा. सो इन दी बुक्स ऑफ ए लिमिटेड, जब अकाउंट्स ए लिमिटेड प्रिपेयर कर रहा है, तो जब एसेट्स रिकॉर्ड करेगा, तब उसमें राम का नाम भी आएगा क्योंकि राम डेटर है, और बिल्स रिसीवेबल भी आएंगे. ओके, वो अगर राम से ड्यू है तो राम के नाम से बिल्स रिसीवेबल आएंगे, वो हो सकता है कोई और एक्स वाई जी और किसी से भी ड्यू हो. तो ऐसी सारी अमाउंट्स कहाँ पर आती हैं, एसेट साइड पे आती है. ओके, सो व्हाट आई विल डू इज